This week on Exposed, in a special investigation, we blow the lid off a stock trading company and unearth a 1,000 crore rupees scam that has now left thousands of investors in peril. Cross-selling hits a new low. In a horrific revelation, we expose how banks and their agents unabashedly mislead home loan customers, forcing them to also opt for insurance investments. And we bring you details of the wave of anti-corruption protests led by social activist Anna Hazare against corruption, and that's what Something Exposed stands for as well. Hello and welcome to this edition of Exposed, a show that tracks down economic criminals and seeks to protect you and your hard-earned money from scheming scamsters. On the 19th of March, we had exposed how Stock Guru India is audaciously flouting all rules in the book to impudently harm gullible investors. The scam could be worth 1,000 crore rupees, as our today's investigation shows. Avinash Fulsundar and Arun Kumar have this investigation. Stock Guru India, a stock trading company that is not even registered with market regulators SEBI as an investment advisor. Yet, this company offered trading solutions in equity, derivatives and portfolio management services. This company that claimed to be India's premier financial consultancy even dabbled in MLM schemes. Unsuspecting investors would have been better off had they taken this with a pinch of salt, because the company has now shut shop. हम लोगों को स्टॉक गुरु इंडिया में ये बोल के पैसा लगवाया गया था कि हर महीने 20% रिटर्न आपकी जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उस पर मिलेगा। इसी वजह से लोगों ने उसमें करोड़ों रुपया लगा दिया है। कम से कम 1,000-1,500 करोड़ रुपया इसमें लग चुका है, लेकिन पिछले 4 महीने से हमें कोई रिटर्न नहीं मिला है। मेरा अपना 3 लाख रुपए लगा हुआ है। मेरे नीचे जो मेरी अपनी डाउनलाइन है उसका कम से कम 50 लाख रुपए लगा हुआ है। मैं खुद इतनी परेशान हूँ, मेरे डाउनलाइन परेशान है। 2,500 से 3,000 लोग होंगे जो मेरठ का जहाँ के लोगों का पैसा लगा हुआ है। 12 करोड़ रुपया लगा हुआ है। 10 से 12 करोड़ रुपए यहाँ लोकेश्वर देव ने यहाँ लगवाया हुआ है। यहाँ सारे लोग परेशान हैं कि उनका पैसा नहीं दिया जा रहा है। Hundreds of angry investors are now protesting outside the gates of Stock Guru India's offices, demanding that the company repay their hard-earned money. The company is under the Income Tax Department's radar and its swanky Delhi office is locked. Not just this, its website is also offline. An FIR has also been lodged against the absconding chairman and managing director Lokeshwar Dev Jain. अभी 2 अप्रैल को उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है कि मेरी कंपनी डेड है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग इनकम टैक्स से अपना पैसा लीजिए। और अभी 2 दिन पहले उनकी वेबसाइट भी बंद हो गई है। इसका मालिक जो है स्टॉक गुरु का मालिक है लोकेश देव जैन और प्रियंका। ये हस्बैंड वाइफ दोनों इस कंपनी को चलाते थे और इस कंपनी को हम लोगों को एक रिटर्न अच्छा सा देने के बहाने हम लोगों से काफ़ी पैसा लिया और वो पैसा तकरीबन 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। और ये 2.5 लाख आदमियों को बेवकूफ़ बना के अभी हमें पता नहीं है ये यूएस से चला गया, कहाँ चला गया। मेरा यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया मेरी टीम में लगा हुआ है। मैं हिसार से हूँ और इतना मैं बताना चाहती हूँ उनको कि आज ये जो पावर है, ये जो मैन पावर है, ये मिल कर के हम उनको कहीं से भी पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकालेंगे और उनको छोड़ेंगे नहीं। In the eye of this hurricane is the promoter of this company who claims he has no involvement in this scam. लोग ये समझ रहे हैं कि मैं शायद कंपनी से कुछ मिला हुआ हूँ या लोकेश्वर जी का कोई आदमी हूँ। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं भी एक आप जैसा ही एक इन्वेस्टर हूँ, आम इन्वेस्टर हूँ। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, मेरा भी पैसे बहुत लगे हुए हैं और पैसा नहीं आया। तो मैं तो जनता की तरफ से भी गुनाहगार हूँ कि भाई हमने आपको ज्वाइन कराया है और कंपनी के जो पैसा लोग लगाते थे वो स्टॉक गुरु के अकाउंट में पैसा डालते थे
और वहाँ से वो लोग चले गए हैं। तो मैं पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि हम सब लोग मिलके रहें, आपस में मिलके सरकार पे भी रिक्वेस्ट करेंगे, लोकेश्वर देव जैन से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम आके नहीं रिटर्न आप दें, 20% ना दें, 10% ना दें, कम से कम जो पब्लिक है उनका प्रिंसिपल आप अगर लौटा दें। In his confession, Sinha also spills more beans to highlight the rot in the company. सब अच्छी तरीके से चल रहा था और इनका रिटर्न भी इनका दावा था कि आईपीओ मुझे लाना है, ये बहुत इनकी सीडी भी बनी हुई है, आईपीओ लाने का इनका वादा था। अचानक दिसंबर के बाद से इन्होंने पे आउट नहीं देना चालू किया। टोटल जो कंपनी का टर्नओवर था वो 650 करोड़ से ज़्यादा है और जो इन्होंने पैसा जनरेट करके इन्होंने पब्लिक को बताया था वो बताया 1000 करोड़ रुपए का बताया। इन्होंने दूसरी कंपनी भी लॉन्च करनी चाहिए, लॉन्च किया इन्होंने दिसंबर के बाद कॉपर ट्रेंड के नाम से। मेरा उसमें इनका विरोध यह था कि जब एक कंपनी आपकी चल रही है तो दूसरी कंपनी लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि एक आदमी को लायबिलिटी आप पहले पूरा कर लें तो दूसरी कंपनी आप लॉन्च करें। So while the promoter claims innocence, even as the chairman of the company is allegedly absconding, the rather sad truth is that thousands of investors have been left high and dry to fend for themselves. Today we bring you voices of such investors who have allegedly lost all their hard-earned money to the mastermind of this big scam. Jaswinder Singh first heard about Stock Guru India from a friend. Singh says the shimmer and the shine of 20% fixed returns every month was too difficult for him to resist. So Singh took a loan to finance investments in this company. And today, he claims the company has duped him. टोटल मेरा 1,10,000 मैंने इस कंपनी में लगाया, लेकिन जनवरी 2011 से प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। जब हमने पूछा कि आपने पे आउट्स हमारे नहीं आ रहे हैं, क्या रीज़न है उसका, तो उन्होंने बताया कि इस तरह से हमारे रेड पड़ी है इनकम टैक्स की दिल्ली ऑफिस में, कंपनी ऑफिस में, और वहाँ से हमारा कैश जो सीज किया है कंपनी ने, डॉक्यूमेंट्स और क्लाइंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं हमारे, वो सारे उन्होंने ले गए हैं स्टॉक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। तो इसलिए उसमें देर हो रही है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। 1-2 महीने में सारा मार्च तक ठीक हो जाएगा और 2 अप्रैल से हम लोग वापस बिजनेस में आ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और 15 अप्रैल से सबके पे आउट्स हम रिलीज करेंगे। The story is not very different from Manmohan Singh. He claims he too was lured to invest in Stock Guru India. मुझे कभी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इतना पता नहीं था, लेकिन जब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि इसमें अच्छी रिटर्न आ रही है, अच्छी कमाई हो सकती है, तो एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचते हुए मैंने ये स्टॉक गुरु इंडिया नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया, जिसमें मुझे बताया गया था कि आप जितना पैसे इन्वेस्ट करेंगे 6 महीने तक उसका 20% आपको मिलेगा और उसके बाद कैपिटल वापस मिल जाएगी। The investors claim they have reposed their faith and money in Stock Guru India, but they allege the company has cheated them and shrugged off all responsibilities towards them. हमारी ये प्रॉब्लम ये है कि इतना पैसा लगाया हमने, मैंने भी लगाया, मेरे दोस्त ने लगाया, रिश्तेदार ने लगाया है। अब वो पैसा अब हम वापस कैसे मिले हमें? जो हमें मिल चुका है ठीक है, वो तो उन्होंने कहा था कि हम 20% देंगे आपको, वो देते रहे हैं, पर अचानक हमारा जो कैपिटल अमाउंट हमारा इतना बड़ा अमाउंट है, ह्यूज अमाउंट है, उसको हम कैसे वापस करेंगे उसको? The company has urged investors to submit documents to authenticate and initiate the claim process, but investors say they are not convinced about the company's commitment to repay them. उन्होंने बोला कि कुछ प्रॉब्लम हमें इनकम टैक्स की ओर से आई है, कुछ टैक्स पे हमने नहीं किया, तो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाइए। तो हमने सारी फाइल बना के पूरे वहाँ पर जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए, लेकिन अभी जब यूट्यूब पे हमने कुछ वीडियोस देखे तो पता चल रहा है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं कचरे के भाव में साइड में फेंक दिए गए हैं और नोटिस लगे हुए हैं कि स्टॉक गुरु का वहाँ से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद CMD के भी नोटिस आ रहे हैं कि मेरे पास 2 कंट्रीज़ के पासपोर्ट्स हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, तो नोबडी कैन, कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता है। तो इस वजह से उसके बाद देखा तो अभी कल हमने ट्राई किया तो उनकी साइट भी क्रैश हो गई है और कुछ भी नहीं हो रहा है, खुल नहीं रही है। This is not the first time a company has left its investors in the lurch. We hope regulators will wake up and address the root cause of such scams ailing the health and integrity of our capital markets. We slip into a quick break, but are you seeking a home loan? Find out how some agents are twisting all rules in the book to boost their revenues. And that too at your expense. Keep watching Exposed.